ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے اور سننے والے مسیحی ایمانداروں کو پاسٹر سنیل اور سیف لائف ٹی وی کی جانب سے سلام قبول ہوں۔ میرے عزیزو، جس موضوع پر میں آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے عید پینتیکوست۔ عید پینتیکوست عزیزو، تمام مسیحی ایمانداروں کی زندگی کے اندر یہ بہت بڑا ایک انقلابی وقت تھا، جب روح القدس کا شاگردوں کے اوپر نازل ہونا اور روح القدس کے وسیلہ سے شاگردوں کی زندگی کے اندر ایک انقلابی دور آیا۔ ہم کلام مقدس میں ذرا اس حوالے کو تاریخ کے ساتھ دیکھیں گے تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یوئیل نبی کے وسیلہ سے خدائے قدوس نے، خدائے پاک نے یہ نبوت پہلے ہی کر دی۔ یوئیل نبی کی کتاب جو ہے وہ 4 اور 5ویں صدی کے اندر یہ لکھی گئی، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان واقعات کی بنا پر خدا نے اپنے بندہ کو اپنی آمد کے دن کے بارے میں دکھانا شروع کیا۔ خدا کا کلام اپنے بندہ کے وسیلہ سے یہ بات بیان کرتا ہے، خدا سے دور ہیں، خدا کی قدرت سے دور ہیں، خدا ان کو برسر اقتدار تک پہنچائے گا، اور اسی کے ساتھ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بحالی اور برکت کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اور قابل توجہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے بندہ نبی کے وسیلہ سے یہ بات فرماتا ہے کہ میں اپنا روح جو ہے آخری وقت میں تمام بشر پر ڈالوں گا، اس میں چاہے کیا مرد ہیں، کیا عورت ہے، کیا نوجوان ہیں، کیا بوڑھے ہیں، سب پر روح القدس کا نزول ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس میں سے یوئیل نبی کی کتاب میں سے اس نبوتی کلام کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں اپنا روح ہر ایک بشر پر ڈالوں گا، اور خدا اپنے بندہ یوئیل نبی کے وسیلہ سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں یوئیل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت سے لے کر ہم 30ویں آیت تک دیکھتے ہیں تو یہ نبوت وہاں پر 4 اور 5ویں صدی میں جو ہے کیونکہ یہ بیان کی گئی، جب یہ کتاب لکھی گئی، یوئیل نبی کی کتاب لکھی گئی۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ جب اس نبوت کی تکمیل پوری ہوتی ہے تو اس تکمیل کے اندر بھی سیم وہی الفاظ جو یوئیل نبی کی کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں، کیونکہ لکھا ہے اعمال 2 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں ایسے ہم پڑھتے ہوئے یہاں پر لکھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ اپنے بندے اور اپنی بندیوں پر ان دنوں میں اپنے روح سے ڈالوں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر جب ہم کلام مقدس میں یہ بات دیکھتے ہیں تو یہ تکمیل جو ہے، اس نبوت کی تکمیل جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خدا یہاں پر انقلابی طور پر شاگردوں کے درمیان اپنے روح القدس کو نازل کرتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال، میرے عزیزو، یہاں پر عید پینتیکوست کا دن ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ شاگرد جتنے بھی ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہیں اور وہ حالت دعا کے اندر ہیں، اور جب وہ حالت دعا کے اندر ہیں اور روح کے اندر، اپنے آپ کے اندر وہ بالکل خدا کے نام میں، خدا کے پاک روح میں کیونکہ بالکل وہ پیوست ہیں، تو اس وقت کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسی سناٹے کے درمیان وہ گھر جہاں پر وہ بیٹھے ہیں وہ لرز جاتا ہے، وہ ہل جاتا ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں۔ روح القدس جب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے تو وہ زبانیں ان کو نظر آتی ہیں، اور پاک روح یہاں پر فرماتا ہے کہ وہ زبانیں جو ہیں ان کے اوپر آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ جب وہ ٹھہر جاتی ہیں
तो खुदा का कलाम बयान करता है, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी थी। मेरे दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि रूह कुद्दस जब उनके ऊपर नाज़िल हुआ तो उनको ताकत और जोर और कुव्वत का बड़ा गहरा एहसास हुआ। और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो तरह तरह की ज़बानों के अंदर खुदा के कलाम को बयान करना शुरू कर देते हैं। और ये मौज़ाती तौर पर हुआ। यहां पर हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जब ये सारा वाक़या रूनुमा हो रहा था, ये सारा वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ, तो उस वक्त उस घर के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे लोगों की जो भीड़ है वो लग जाती है। और लोग देखते हैं कि इस घर से शोर की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा चलाने की आवाज आ रही है। तो अज़ीज़ों, ये बात आपको बताना चाहता हूं कि कलाम मुक़द्दस में सब लोग जो है वो उस घर के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि लोग उनको समझते हैं कि ये नशे और मै की हालत में हैं, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि पतरस उन 11 में से उठकर खड़ा होकर बयान करता है, बताता है कि हम नशे की हालत में नहीं हैं, अभी तो दिन का पहर ही है, पहला ही वक्त है। और वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ज़बानों से, रंगों और नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, मुख्तलिफ ज़बानों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और खुदा का कलाम बयान करता है कि उनमें अलामी, मेसोपोटामिया, यहूदी और कब्दिकिया और मुख्तलिफ जो है 12 ज़बानों के जो उनके लोग जो हैं, जो जानने वाले, वो वहाँ पर मौजूद थे। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जब पतरस रूह कुद्दस की हदायत से बड़े जोर से और बड़ी पावर के साथ बोलता है तो उन सबको अपनी अपनी ज़बानों के अंदर वो खुदा का कलाम जो है सुनाई देता है। और हर एक ये बात करता है, ये मेरी ज़बान में खुदा की तारीफ करता है। मेरे दोस्तों, यहां पर ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि उनमें से बहुत सारे उन ज़बानों को नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के रूह की हदायत की वसीला से, रूह कुद्दस के फजल की वसीला से खुदा का कलाम अपनी अपनी ज़बानों के अंदर सुना। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब योएल नबी की ये तकमील पूरी होती है तो खुदा अपनी कुदरत को भरपूर तरीके से, बड़े जोर के साथ उस वादे को पूरा करता है जो खुदा ने अपने नबी की मार्फत पूरा किया, कहा था। मेरे अज़ीज़ों, ये बात आज हम देखते हैं कि रूह कुद्दस की नज़ूलियत जो है वो बड़े जोर और ताकत के साथ खुदा यीशु मसीह जो है इस बात को पहले ही बयान कर देते हैं, बता देते हैं कि जब तुम पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम जोर पाओगे। और ये जोर, ये ताकत जो है ये आम इंसान की ताकत के मानी नहीं होगा, ये वो होगा, जोर वो ताकत होगी जो खुदा की तरफ से दिया जाएगा। कलाम मुक़द्दस में इसी हवाला को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आपके ईमान की और ज़्यादा मजबूती हो। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, खुदा के कलाम में बयान किया गया है, रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है। और ये बात बड़ी बड़ी काबिल गौर है। हम समझ सकते हैं इस बात को कि खुदा का रूह जो है वो जोरावर है, वो ताकतवर है। खुदा के कलाम में यहां पर लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, जरा गौर कीजिएगा, जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरे अज़ीज़ों, रूह कुद्दस जो है जब नाज़िल हुआ, ये यीशु मसीह ने पहले बता दिया कि रूह कुद्दस जो है जब वो नाज़िल होगा तो तुम्हें जोर और कुव्वत देगा। मेरे अज़ीज़ों, जब रूह कुद्दस शागिर्दों पर नाज़िल हुआ तो उस तरह ही हुआ जिस तरह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए बात कही कि जब वो तुम पर नाज़िल होगा, रूह तुम पर नाज़िल होगा, रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। और ये वही बात है कि यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपकी रहनुमाई के लिए एक और हवाला को रखना चाहता हूं। ये बहुत प्यारा और खूबसूरत हवाला है। इसको सुनने से यकीनन आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? खुदा का फजल जाहिर होगा। यीशु मसीह रूह कुद्दस के बारे में योएल नबी नबूवत करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों को रूह कुद्दस के बारे में, पाक रूह के बारे में पहले ही वो आगाह करना शुरू कर देते हैं। ये तकमील तो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद पूरी होती है। और जब हम इस तकमील को देखते हैं तो इस तकमील को किस तरह है कि यीशु मसीह पहले ही बता चुके हैं, यीशु मसीह ये बात कर चुके हैं। हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं, उसका 14वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें
दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, प्रेज द गॉड। यहां पर दूसरा मददगार जो उनकी जिंदगी में आने को था, और खुदा का कलाम बयान करता है कि ये मददगार हमेशा उनके साथ रहने वाला था। ये मददगार उनको कभी भी छोड़ने वाला नहीं था। ये मददगार उनकी दुख और मुसीबत में भी उनके साथ था। ये मददगार उनको जुर्रत और ताकत देने वाला था। और ये मददगार जो है अटर्नल लाइफ तक, हमेशा तक उनके साथ है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। यहां पर देखते हैं, मैं बाप से दरख्वास्त करता हूं। बाप से दरख्वास्त करना एक बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उसने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं। ये मददगार मेरे अज़ीज़ों, मेरे प्यारे बहनों और मेरे भाइयों, ये मददगार रूह कुद्दस ही है, जो हर मसीही ईमानदार की जिंदगी में रूह कुद्दस का होना जरूरी है। यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे जानती है और ना देखती है। तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। बोले हालेलुया, प्रेज द गॉड। तुम्हारे अंदर होगा। अब रूह कुद्दस जो है उनके अंदर आने को था, और ये तकमील हम दोबारा मैं हवाले इसलिए आपके सामने रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके इल्म के लिए, आपके नॉलेज के अंदर इजाफा हो। दूसरा बाब अमाल, उसकी पहली आयत में अब उनके अंदर आने को था। हालेलुया, प्रेज द गॉड। ये रूह कुद्दस उनके अंदर आने को था। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि इसी तरह हुआ। रूह कुद्दस उनके अंदर उतरा और उन्होंने जोर और तकवीत पाई। ये सब कुछ इनकलाबी तौर पर हुआ। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके ईमान की तकवीत के लिए ये बात आपको बताना चाहता हूँ। रूह कुद्दस हम में कैसे आ सकता है? रूह कुद्दस हम में किस तरह नाज़िल हो सकता है हम पर? इस बात के लिए हमने फिक्र करना है। हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी की पुरानी दास्तानों को बयान करते हैं। नौजवान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है योएल नबी के सहीफ़ा के मुताबिक कि ये नबूवत जो है, ये नौजवान मर्दों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, बेटों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर ये उतरने वाली है, ये पूरी होने वाली है। और जब तक हमारी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ नहीं होगी, हम हकीकी तौर पर खुदा को नहीं जानेंगे, खुदा के कलाम को नहीं जानेंगे, यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, तो ये नबूवत की तकमील जो है हमारी जिंदगी में पूरी होने वाली नहीं है। आइए इस बात को देखते हैं खुदा के कलाम में से। रोमियो 8वां बाब उसकी 9वीं आयत में बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी आयत आपके ईमान की तकवीत के लिए। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम जिस्मानी हालत में हैं तो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को साथ रख रहे हैं, तो रूह कुद्दस हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। यहां पर लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो? रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हो। यह शर्त है कि खुदा का रूह हम में बसा हो, तो हम रूह कुद्दस की पाक और नेक हदायत को जान सकेंगे। और खुदा का कलाम बयान करता है कि हमें जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बनना होगा। हम रूहानियत की तरफ अपनी जिंदगी को लेकर आए, जिस तरह के खुदावंद के कलाम में रोमियो 8वां बाब मैंने 9वीं आयत आपके सामने रखी है। यहां पर खुदा का कलाम बयान करता है कि जब तक हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के साथ हैं, हम रूह कुद्दस को नहीं पा सकते। रूह कुद्दस को पाने के लिए हमें अपनी तमाम जिस्मानी ख्वाहिशात को तर्क करना होगा। अपनी रग़बत जो है वो खुदा के कलाम की तरफ और खुदा यीशु मसीह की तरफ करनी होगी। तब ही रूह कुद्दस हम पर नाज़िल होगा, तब ही रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में आकर काम करेगा, तब ही रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में इनकलाब लेकर आएगा और खुदा हमारे वसीलों से बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने वाला होगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम मसीह का बनना चाहते हैं, यीशु का बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में उसके रूह को अपनाना होगा, उसके रूह को पाना होगा। मेरे अज़ीज़ों, इस बात के लिए मैं बात बताना चाहता हूँ, बड़े फ़ख्र से ये बात बताना चाहता हूँ कि हम रोमियो 8वां बाब उसकी 14वीं आयत में पढ़ते हैं,
जितने रूह की हदायत से चलते हैं, रूह कुद्दस की हदायत से चलते हैं, जितने मसीह को पा लिया है, जितना मसीह को हासिल कर लिया है, उनके लिए ये बहुत बड़ी और खूबसूरत आयत है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जितने रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया, प्रेज द गॉड। मेरे अजीजों, अगर हम रूह की हदायत से नहीं चलते, यीशु के रूह के बगैर चलते हैं, तो हम उसके बेटियां और बेटे नहीं हैं। बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी आयत। इसलिए कि जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटियां और बेटे हैं। ये बात हमारे लिए फख्र की बात है कि आसमान पर कादिर मुतलक खुदा जो है वो हमें अपने बेटी और बेटे कह रहा है। लेकिन शर्त एक है कि हम में मसीह का रूह जो है बसा हुआ। इस सबब से हम मसीह को, खुदा को पसंद आने वाले होंगे। मेरे अजीजों, हर नौजवान को, हर बूढ़े को इस तकमील के लिए अपने आप को खुदा के हुजूर में, इस नबूवत की तकमील के लिए अपने आप को आके खुदा के सामने, उसके मज़बा के सामने पेश करना होगा। तभी खुदा की मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी होगी। मेरे अजीजों, ये बात आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा बरकत और ब्लेसिंग का सबब बन सकती है। मैं आपको खूबसूरत बात बताने वाला हूँ। रूह कुद्दस जो है वो क्या है हमारे लिए? रूह कुद्दस हमारे लिए क्या है? हर उस मसीही ईमानदार के लिए रूह कुद्दस खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। उस सूरत में जब एक मसीही ईमानदार बेटी, बेटा खुदा के हुजूर में चलता है, खुदा के हुजूर में उनके ताबेदारी करता है, पाक रूह की रहनुमाई में चलता है, तो रूह कुद्दस उसको खुदा की तरफ से इनाम है। मेरे साथ खुदा के कलाम में अमाल 2 बाब उसके 38वें आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुद्दस तुम इनाम में पाओगे। हालेलुया। यीशु के नाम पर बपतिस्मा लें और अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें, तो खुदा का कलाम बयान करता है रूह कुद्दस को तुम इनाम में पाओगे। और ये खूबसूरत इनाम है, इतना खूबसूरत इनाम है कि दुनिया के तमाम जो खूबसूरत तहाइफ भी सामने रखे जाएं, तो उनकी जो खूबसूरती है वो रूह कुद्दस का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इनाम खुदा की तरफ से है, दुनिया के तहाइफ नहीं है, ये ज़मीनी तहाइफ इनाम नहीं है, ये खुदा की तरफ से हमें ये ब्लेसिंग मिली और ये इनाम है। और ये खूबसूरत इनाम मैं चाहता हूँ कि हर मसीही नौजवान जो है इस इनाम को हासिल पर। खुदा उनका कलाम बड़ी खूबसूरत तरीके से बयान करता है। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 6 उनकी आयत में लिखा हुआ है कि रूह फरमाता है, रूह कलीसियों से फरमाता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमा रहा है। अब कलीसियों को सुनने का दौर है, सुनने का वक्त है। रूह फरमा रहा है, सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। रूह हमें पुकारता है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमने अपने कानों को बंद किया हुआ। हम रूह कुद्दस को पाने के लिए कोई तगोदो नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना रहे। यहाँ पर रूह कुद्दस इनाम है। जब मसीह में दुख उठाते हैं, मसीह में रहकर वो सब कुछ करते हैं जो खुदा कदूस हमसे चाहता है, खुदा की पाक मर्जी हमारी ज़िंदगियों से, फ़ानी ज़िंदगियों से पूरी हो, तो फिर रूह कुद्दस हमें इनाम के तौर पर दिया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, इसी रूह कुद्दस की रूहानी तहरीक का जो वलवला था, जो जोश था, जो कुव्वत थी, उसका अंजाम ये हुआ कि जब पतरस खड़ा हुआ तो 3000 के करीब लोगों ने जो है खुदा कदूस पर, यीशु मसीह पर ईमान लाया और बपतिस्मा लिया और रूह कुद्दस के इनाम को हासिल किया। मेरे अज़ीज़ों, हम सब मसीही ईमानदारों का ये शऊर होना चाहिए कि हम रूह कुद्दस को हासिल करें। कलीसियाँ जो हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने अपने लोगों के अंदर इस बात को बयान करें कि रूह कुद्दस पाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। रूह कुद्दस के बारे में तालीम दें, रूह कुद्दस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनके नौजवानों को अवेयरनेस दें, ताकि वो एक मसीही ईमानदार होकर अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए ये बहुत खुशी का वक्त है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा उनके मसरत का वक्त है कि हमें जो है वो रूह कुद्दस को पाने के लिए, रूह कुद्दस को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह के कदमों में रखनी होगी। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में
تبدیلی آئے گی، اور یہ تبدیلی روح القدس کے نزولیت کے وسیلہ سے ہوگی۔ آئے میرے عزیزو، میں اپنی نوجوان بیٹیوں سے، نوجوان بیٹوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں خدا کے کلام کو جانیں اور سمجھیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے روح القدس کے بغیر خدمت نہ کریں، روح القدس کے بغیر کوئی کمنٹ نہ کرے، کیونکہ روح ہی ہے جو ہمیں تمام طرح کی انفارمیشن دے گا، روح القدس ہی ہے جو ہمیں سب کچھ بتائے گا جو ہم نے ان کے کہنا ہے، اور یہ سب کچھ باپ کی طرف سے ہمارے لیے ہوگا۔ میرے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آج کا کلام جو ہے آپ کی زندگی میں پھل در ثابت ہوگا۔ میری آواز جن جن مسیحی ایمانداروں تک پہنچ رہی ہے، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آئیں خدا کے کلام کی طرف بڑھیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔